फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन। सो आज मैं कंटिन्यू करती हूँ चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा रही थी, तो वहीं से करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस: इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट और डिस्प्लेसेस फ्रॉम अ कंपाउंड 1.008 parts by mass of hydrogen, 8 parts by mass of oxygen and 35.5 parts by mass of chlorine is known as the equivalent weight of the element. जो पार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं मास एलिमेंट के मास से, जो रिएक्ट करते हैं डिस्प्लेस करते हैं कंपाउंड से, उन्हें हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 mgO, जिसमें mg की 48 ग्राम था, ऑक्सीजन का 32 ग्राम था। फिर उसको रिड्यूस करेंगे तो 12 ग्राम एंड 8 ग्राम होगा। सिंस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, देयरफॉर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is equal to 48 into 8 upon 32, that is 12 gram. Equivalent weight of magnesium is 12. Similarly, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 65.5 gram, 32.75. Equivalent weight of Zn 65.5 upon 2 equals to 32.75 gram. Aluminium plus 3 by 2 Cl2 gives AlCl3 27 gram, 3 by 2 into 71 gram. Since 111.5 gram chlorine reacts with 27 gram of aluminium, therefore 35.5 chlorine reacts with 27 into 35.5 upon 111.5 equals to 9.0 gram of aluminium. Equivalent weight of aluminium equals to 27 by 3, that is 9. As we can see from the above examples that equivalent weight is the ratio of atomic weight and a factor, say n factor, उसको n factor मान लो, और valency factor या फिर valency factors भी कह सकते हैं, which is in above 3 cases is their respective valency. वो उनकी respective valency थी जो हम लोग ने निकाली. Equivalent weight in general, equivalent weight E, atomic weight or molecular weight upon valency factor, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इक्वल्स टू m by x. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मास ऑफ स्पीशीज अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट स्पीशीज. फॉर अ सोल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n1v1 वेयर n इज द नॉर्मेलिटी एंड v इज द वॉल्यूम इन लीटर्स. इसमें n नॉर्मेलिटी होता है और v वॉल्यूम होता है लीटर्स में. इक्विवेलेंट मास एक प्योर नंबर है जो एक्सप्रेस होता है ग्राम में, उसे हम ग्राम इक्विवेलेंट मास कहते हैं. इक्विवेलेंट मास एक सब्सटेंस का डिफर कर सकता है, हैव डिफरेंट वैल्यूज अंडर डिफरेंट कंडीशंस. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट इक्विवेलेंट वेट विल बी ऑलवेज लेस दैन द मॉलिक्यूलर मास. उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि जो इक्विवेलेंट वेट हो वो हमेशा लेस दैन हो उसके मॉलिक्यूलर मास से. Valency factor calculation for elements, valency factor equals to valency of that element. For acids, valency factor equals to number of replaceable H plus ions per acid molecule. Solved examples हैं कुछ. Example 5. Example आप देख लीजिए यहाँ है. Bases may be defined as a substances in which OH group are directly attached with group 1 elements, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Group 2 elements Be, Mg, Ca, Ba, or group 3 elements Al, Ga, I and Ti. Transition metals, non-metallic cations like PH4 plus, NH4 plus, etc. Acid-base reaction. In case of acid-base reaction, जो valence factor होता है वो actual number होता है H plus और OH minus replaced in this reaction. Acid or base may contain more number of replaceable H plus or OH minus than actually replaced in reaction. Valency factor for base is number of H plus ion from the acid replaced by each molecule of the base. एक कुछ solved example है. Valency factor for acid, valency factor जो होता है acid के लिए वो होता है number of OH minus replaced from base by each molecule of acid.
ये एग्जाम्पल 7 है, आप देख सकते हैं. सॉल्ट्स इन नॉन रिएक्टिंग कंडीशन, वैलेंसी फैक्टर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज जो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं. ये एक और सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8 आप देख सकते हैं. इन रिएक्टिंग कंडीशन, पहले था नॉन रिएक्टिंग, अब रिएक्टिंग कंडीशन. रिएक्टिंग कंडीशन में इट इज़ अ सॉलिड, it is an acid base reaction, therefore valency factor for Na2CO3 is 1, while in non reacting condition it will be 2. non reacting condition में वो 2 हो जाएगा. equivalent weight of oxidizing या फिर reducing agent in redox reaction. in case of redox change, valency factor equals to total change in oxidation number per molecule. redox change के केस में जो valency factor होगा वो टोटल चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में पर मॉलिक्यूल. एक और सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10. अब नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट जो 1 लीटर में या फिर 1000 मिलीलीटर में सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं. लेट VmL ऑफ अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving W ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ इक्विवेलेंट वेट E इन वाटर. लेट कर लो कि VmL है, मिलीलीटर है, सोल्यूशन का प्रिपेयर किया गया है डिसॉल्व करके W ग्राम ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट है E इन वाटर. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट दैट इज W by E ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इन वाटर. VmL of solution contain W by E equivalents of solute. Therefore जो 1000 ml solution था उसमें हो गए W into 1000 अपॉन E into V equivalents of solute. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आएगा आपका W is equal N equals to W into 1000 अपॉन E into V. नॉर्मेलिटी जो N से डिनोट होता है वो होगा मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर. N into V in milliliter equals to M into V in milliliter into N, या फिर milli equivalents equals to millimoles into N. ये सॉल्व एग्जाम्पल 11 है, आप देख सकते हैं. फिर सॉल्व एग्जाम्पल 12. सॉल्व एग्जाम्पल 12 है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ 5m सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडिया. इसका नॉर्मेलिटी निकल के 5 into 6 करेंगे तो वो आएगा 30n. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा. अगला आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊँगी. थैंक यू.